بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عوام کی آواز سے مخاطب ہوں آج سیری سے. ناظرین اکرام، میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سیری کے اندر جو ہے گزشتہ دنوں میں یہاں پہ کرونا کا ٹیسٹ ایک مثبت آیا تھا. اس کے بعد یہاں پہ پوری فیملی کے ٹیسٹ لیے گئے تھے اور آج یہاں پہ ان کا رزلٹ آیا تو اسی گھرانے کے 7 افراد کا جو رزلٹ ہے وہ مثبت آیا ہے. اور یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر کھوئیرٹا جناب سید نسیم عباس شاہ صاحب، تحصیلدار کھوئیرٹا جناب ارباب شہین صاحب، سیکٹری یونین کونسل اور دیگر جو عملہ ہے محکمہ صحت کا وہ بھی یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. اور یہاں پہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمد ذوالفقار، محمد اسحاق، وقار احمد کی فیملی سے 7 افراد کے کرونا کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے ہیں. لہذا یہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ان کے گھرانے کو، اس کو مارکیٹ کو جو ہے یہ سیل کیا گیا اور کوئی بھی شخص اس گھرانے کے اندر نہیں آ سکتا. مزید آپ سن سکتے ہیں. اور نہ ہی غیر ضروری اس مارکیٹ کی طرف آئے گا. جن لوگوں کو کھانسی، نزلہ، بخار یا جسم درد کر رہا ہو، اس گھر کے گیٹ کے اوپر سرخ جھنڈا جو وہ نصب کر دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک بندہ جو ہے اس چیز سے آگاہ ہو سکے. جو اسپتال کھوئیرٹا رابطہ کرے تاکہ ان کے ٹیسٹ کروائے جا سکے. تمام لوگ اپنے اپنے گھروں میں رہیں، غیر ضروری اپنے گھر سے نہیں نکلے گا. انتظامی کمیٹیاں راضی کی ہیں خورد و نوش کی اشیاء کے لیے مقامی کمیٹی کے ساتھ رابطہ کریں گے تاکہ ان کے مسائل حل کیے جا سکے. محمد ذوالفقار، محمد اسحاق، وقار مناس کی فیملی کے مزید 7 کرونا پازیٹیو کیس نکلے ہیں. لہذا کھوئیرٹا کے اس مارکیٹ کو انتظامیہ جو ہے وہ سچو صاحب اور ایڈیشنل سچو وہ بھی یہاں مکمل پہ طور پر پہنچا ہے. سیل کر دیا گیا ہے. 7 اور کل فاروق جمعۃ المبارک جامع مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. لہذا لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز ادا کریں. کوئی بھی شخص غیر ضروری بازار میں نظر آیا تو تحصیل انتظامیہ، تھانہ پولیس کو رہتا سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی. اگر 4 دن پہلے نیگیٹو سے تو آج ضروری نہیں اس وقت نیگیٹو ہو اس گلے تو اپنے آپ کی بچانا ہے سارے. اچھا ناظرین، ہم چلتے ہیں اب اسسٹنٹ کمشنر جناب سید نسیم عباس شاہ صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کی جو تفصیل ہے کتنے لوگوں کے آج ٹیسٹ جو ہیں وہ مثبت آئے اور یہاں پہ انتظامیہ موجود ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ ان کی تفصیل کیا ہے. السلام علیکم سر. عوام کی آواز سے آپ سے مخاطب ہیں. ناظرین، جناب اسسٹنٹ کمشنر کھوئیرٹا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ان کی سر کیا تفصیل ہے جن کے رزلٹ جو ہیں یہاں پہ مثبت آئے، کتنے افراد ہیں اس کنبے کے جن کے رزلٹ جو ہیں وہ مثبت آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جس جگہ پہ کھڑے ہیں اس کا نام ہے سیری اور ایک یہاں سے خاتون پہلے پازیٹیو آئی تھیں جن کا کنٹیکٹ دیہاڑی باغ والی جو فیملی ہے اس کے ساتھ تھا اور ان کے سائن سمٹم جب سامنے آئے تو پھر ہم نے یہاں جو اپنی موبائل وین ہے اس کو یہاں منگوایا اور اس کے بعد ان کا یہاں ہم نے ٹیسٹ کروایا. وہ ٹیسٹ جب پازیٹیو آیا تو پھر اس کے بعد ہم نے ان کو ہوم آئسولیشن پالیسی کے تحت گھر میں ہی آئسولیٹ کیا اور اس کے بعد جو ان کی فیملی کے
दूसरे लोग थे उनके भी टेस्ट जो है वो लिए गए। तो आज 5 बजे के करीब हमें इतला मिली कि जो बाकी फैमिली के 6 लोग हैं, एक खातून पहले है और 6 बाकी कुल 7 लोग जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं। ठीक है। और इस ख़ानदान की कुल जो लोग हैं वो तकरीबन 11 हैं, 4 हैं जो नेगेटिव हैं और इनका एक दूसरा साथ घर है जहाँ पर मेरे पहुँचने से पहले मेरी टीम जो मेरे तहसीलदार साहब, मेरा फील्ड अमला और इनके साथ दूसरे लोग जो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल वो मौजूद हैं, इन्होंने मिल के जो लोग नेगेटिव थे उनको अलहदा कर दिया है। ठीक है। अब SOP के मुताबिक इनकी फैमिली का एक बंदा जो है वो लिख के देगा कि उसी ने जो जितने भी यहाँ हमारे पेशेंट हैं उनको खाना सर्व करना है, उनको चीज़ें लेके देनी है। एक तो उनके लिए डिस्पोजेबल बर्तन का एहतमाम करना होगा और खाने के बाद वो बर्तन जो है जलाने होंगे। ठीक। अब चूँकि गुंजान इलाका है, लेकिन खुशकिस्मती है कि ये घर जो है वो एक बड़ी हवेली की सूरत में है और बिल्कुल अलहदा है, दाएं बाएं इसकी दीवार है। और यकीनन जो है जब इनकी एक खातून पॉजिटिव थी तो लोगों ने भी एहतियात की होगी, लेकिन उसके बावजूद हमें कुछ पता नहीं है कि कौन कौन जो है लोग इनके कॉन्टैक्ट्स में आए हुए होंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट्स में रहे हुए होंगे। वो बाज़ार के लोग भी हो सकते हैं, हो सकता है इनमें से कोई बंदा मस्जिद में जाता रहा हो। मैंने आर्जी तौर पर यहाँ के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ये इनाम साहब खड़े हैं, इनकी NGO है, बाकी NGO भी लोकल यहाँ काम करती हैं, लोकल मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनसे भी ये मेरी गुजारिश है कि कल का जुमा इस जामे मस्जिद में ना पढ़े। ठीक। और कल जब जुमा नहीं होगा तो नेक्स्ट जुमा 7 दिनों बाद आएगा ना, तो तब तक ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा जो इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कंप्लीट हो जाएगा और चांसेस होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम जो है इस बीमारी से बाहर निकल सकेंगे। इस सिलसिले में जो मोहल्ला वाले लोग हैं उनका और ख़ासकर जो ये मार्केट है, मैंने तहसीलदार साहब को अभी बताया कि ये सारी मार्केट जो सामने वाली है ये बंद रखें। यकीनन इनका आना जाना रहा होगा, किसी न किसी का आना जाना रहा होगा। जो अभी 4 हमारे पास नेगेटिव हैं, हो सकता है उनमें से भी अब कोई पॉजिटिव हो। ठीक। क्योंकि टेस्ट 3-4 दिन पहले लिया गया था और उसी बुनियाद पे आज रिजल्ट वसूल हुआ है। तो ये इस घराने के जो है जो छोटे बच्चे हैं, मुझे पता चला है कि उनके जो है वो टेस्ट नहीं लिए गए। कल सुबह इंशाल्लाह हमारी ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगी, हम इनके जितने फैमिली के दीगर लोग हैं उनके टेस्ट भी लेंगे और इनके क्लोज कॉन्टैक्ट जो हैं वो मैंने ड्यूटी लगा दी है अपने फील्ड अमला की कि वो क्लोज कॉन्टैक्ट जो है यहाँ, चूँकि हमारी एक आजकल कमेटी बन चुकी है हर मौजे में। हमारी लोकल गवर्नमेंट वदेई तरक्की डिपार्टमेंट जो है हमारा, उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि वो तकरीबन 11 रुकनी है। उसमें मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के लोग उसमें शामिल हैं। तो वो कमेटी जितना जल्दी हो सके यहाँ इसको कंटेन कर सकें। मैं एहलियान सेरी और एहलियान चत्तर का मैं पहले भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब वहाँ बीमारी आई थी और वहाँ हमने 45 घर बंद किए थे। ठीक। और वो 360 लोग थे जब बंद किए, एक ही घर में 3 पॉजिटिव आए थे और लोगों के तावन की वजह से हम वहाँ बीमारी पर काबू पाने में कामयाब हो गए थे। अब हम इन लोगों से गुजारिश करेंगे कि सेरी वालों से कि अब आप हमारे साथ तावन करें और आपकी थोड़ी सी कुर्बानी की वजह से जो है वो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। वरना जो सूरत हाल है अभी आपके सामने दियाड़ी बाग में 9 केसेस हैं, यहाँ जो है 7-8 केसेस हो गए हैं। तो ये किसी नई सूरत हाल की तरफ हम जा रहे हैं। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि जो है सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, मास्क पहने जाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए और ये अभी जिस तरह लोग जमा हो गए हैं इस तरह जमा होने से गुरेज किया जाए। क्योंकि लोग जब जमा होंगे तो फिर एक भी कॉन्टैक्ट, एक भी सस्पेक्ट अगर दरमियान में आ जाता है तो बीमारी जो है वो आगे फैल सकती है। अच्छा सर, एक सवाल है आपसे कि चूँकि ये जो घर है ये बिल्कुल मुलिका है बाज़ार से, और बाज़ार में भी आपने अक्सर यहाँ पे चक्कर लगाते रहे हैं, बाज़ार में खासा रश होता है, कोई भी जो है SOP की जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करता। तो इस हवाले से भी अब इसके बाद जो इंतज़ामिया कोई एक्शन लेगी इसकी जो है मेरे ख्याल में हम काम कर रहे हैं और अब सारे लोगों को पता है कि SOP क्या है और SOP पे काम हो रहा है। हाँ, कहीं वायलेशन हो रही है तो उसके लिए हम कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं, वो जुर्माने की सूरत में भी है, वो लोगों के खिलाफ जो है वो पर्चे भी काटे जा रहे हैं। ठीक। हाँ, एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम इस तरह कार्रवाई की तरफ जाते हैं तो एक तबका तो हमायत में आ जाता है और एक तबका मुखालफत में आ जाता है। ठीक। हमें अब इस रवश से बाहर निकलना होगा। हमें ये देखना है कि हम इस जो लार्जर इंटरेस्ट जो है वो क्या है।
हमें लोगों की सेहत को महफूज करना है, हमें अपनी सेहत को महफूज करना है, हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने इलाके को बचाना है। तो इन चीज़ों के लिए जो है ना, हमें छोटी छोटी मसलियतों से बाहर निकल कर हमें बड़े मकसद के लिए इकट्ठा होना है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हमारा यहाँ बहुत आना जाना रहेगा और कार्रवाइयाँ होंगी। जो दुकानदार SOP को फॉलो करेगा उसकी दुकान सील होगी या इतने भारी जुर्माने लगे कि वो दुकान खोलने के काबिल नहीं रहेगा। अब वो जो पुराना एक जो सिलसिला चल रहा था कि हम गए कहीं और किसी को 500 रुपये या 1000 रुपये जुर्माना कर दिया, तो इनसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। तो इंशाल्लाह अच्छी कार्रवाइयाँ होंगी। अच्छा सर, जहाँ आप फरमाया कि कल वह यहाँ पे जुम्मा नहीं होगा जामा मस्जिद के अंदर, तो अगर जामा मस्जिद में जुम्मा नहीं होगा तो उस हवाले से यहाँ पे जो बाहर है उसको भी अगर 1-2 दिन के लिए बंद रखा जाए, कम से कम 1 दिन के बंद रखा जाए जुम्मे वाले दिन नहीं, तो इस वाले क्या आपकी मतलब होगी? अच्छा, इस हवाले से अगर अभी चूँकि हमने अपने से बात करनी है, कोटली उनसे बात करनी है, अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की हदायत वसूल होती है तो फिर हम आपके वसातत से, हम NGOs की वसातत से, जहाँ जो हमारी कमेटियाँ हैं उनकी वसातत से आपको बता देंगे। अभी तो हमने फैसला किया है कि इस घर के ये जो इधर से पीछे पीछे ये मार्केट है इसको बंद रखना है। मस्जिद जो है वो बंद नहीं की जा रही है। मस्जिद में कल जुमा नहीं होगा सर, जुमा नहीं होगा। एक बड़ा क्लियर कट मैसेज देना चाहता हूँ कि ना ही कोई हुकूमती पॉलिसी है और ना ही मसाजिद को हमने बंद करना है। मसाजिद खुली हैं, सिर्फ ये थोड़ा सा हमने कोशिश करनी है कि अगर इस जुमे पे अगर यहाँ लोगों का यहाँ इज्तिमा ना हो और उसमें कोई सस्पेक्ट या कंटेक्ट ना जाए जिसकी वजह से बीमारी फैल सकती है, इसलिए कल के रोज़ हम मौलाना साहब से गुजारिश करेंगे, अभी हम मिल के जाएंगे उनसे गुजारिश करेंगे कि कल के रोज़ जामे मस्जिद में जुमा ना हो ताकि हम इस बीमारी को जो है ना वो रोक सकें। और ये बुनियादी मकसद है, बाकी मस्जिद ना बंद है और ना इस तरह की कोई पॉलिसी है। अच्छा सर, यहाँ सारे इस तरह हो गए फिर वो। अच्छा, ये बीच में सर चूँकि ये हम प्रोग्राम लाइव कर रहे हैं तो यहाँ पे बीच में एक भाई ने सवाल किया है हमें सऊदीया से। वो कह रहे हैं कि अगर इंतज़ामिया को कोई पॉइंट आउट किया जाए कि वहाँ पे कोई ऐसा उसमें सिम्टम पाए जा रहे हैं तो जो सेहत वाला अमला है वो तामल नहीं करता उनके साथ, उनके घर जाकर चेकअप नहीं करता, तो इस हवाले से जो है कि सेहत का जो महकमा उसको भी पाबंद करें कि कम अज़ कम अगर कोई बंदा आपको कोई पॉइंट आउट करता है तो वहाँ फ़ौरन घर पहुँच कर उसको देखा जाए मरीज़ को कि वाकया उसके अंदर इस तरह के सिम्टम पाए जा रहे हैं। इस तरह की तो हमारी जो ट्रैक एंड ट्रेस पॉलिसी रही है उसके तहत अभी आपको मैं अगर बताना चाहूँ कि इस वक्त जो कुरेटा में जितने भी केसेस आए ये हमारे ट्रैक किए हुए हैं, हमारे ट्रेस किए हुए हैं। 74 वाला मामला आया, आप लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया और हमने कोई लम्हा नहीं ज़ाया किया, उन लोगों को उठा लिया, कोटली ले गए, उनके टेस्ट करवाए और जब टेस्ट हुए तो वो पॉजिटिव आ गए। इसी तरह दिहाड़ी बाग वाले जो है वो एक क्लिनिक पे डॉक्टर साहब का क्लिनिक है, वहाँ जाते हैं और डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि इनके सिम्टम जो है वो ऐसे लग रहे हैं कि ये मुतासर हो सकते हैं। तो हमने कोई वक्त नहीं ज़ाया किया और पूरे दिहाड़ी बाग वालों की फैमिली के टेस्ट ले लिए और ये खातून उन्हीं रिलेटिव है, उन्हीं के इनसे कांटेक्ट की वजह से ये जो है ना वो इस बीमारी का शिकार हुई हैं। फिर हमने इनका भी टेस्ट ले लिया, जब साइन सिम्टम का पता जो हमें पता चलता है तो हम कहीं जो है वो लग्जिश नहीं करते और आपके सामने है कि जितने केसेस आए हैं, जितने इस तरह के साइन सिम्टम वाले लोग हमें मिले हैं उनके हमने टेस्ट करवाएं और उसका नतीजा भी आपके सामने है। सर मजीद आप क्या को पैगाम देना चाहते हैं? मैं एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि अब जिस तरह 74 वालों ने ज़बरदस्त हिम्मत और हौसले के साथ सब्र का मुजाहरा किया और 74 से बीमारी को जो है वो बाहर किया था, अब सेरी वालों का भी इम्तहान आ गया है। अब अलियान सेरी का भी इम्तहान है कि वो इसी तरह जो है वो जिस तरह 74 वालों ने किया था आप भी करेंगे तो आप बहुत जल्द हम बीमारी से बाहर निकल सकेंगे। आप मास्क का जो है ना वो इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो अख्तियार करें। बीमारी का इलाज है कोई नहीं, सही यही इलाज है कि आप मजमे से बचें, आप जो है ना जब भी बाहर निकलें तो अपने आप को कवर रखें ताकि आप इस कांटेक्ट से, जरासीम के कांटेक्ट से बच सकें। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें, अभी हमारा जो पैगाम था वो मौलाना साहब तक पहुंचा है और मुंतज़मीन तक पहुंचा है और उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि कल जो है वो यहाँ जुम्मे की नमाज नहीं होगी।
जामे मस्जिद में कल जुमे की नमाज नहीं होगी। मैं समझता हूँ ये, और मैं शुक्रगुजार भी हूँ जनाब मौलाना साहब का और इस मस्जिद की जो जितनी भी इंतज़ामिया हम अपनी उनके शुक्रगुजार हैं। और ये भी वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये मस्जिद बंद नहीं हो रही। कल सिर्फ इज्तिमा नहीं होगा, जुमे का इज्तिमा नहीं होगा, ताकि हम जल्दी जो है इस चीज़ से निकल सकें। कल जुमा है और जुमे को वैसे ही लॉकडाउन होता है। मैं अगर हमने पूरा शहर कल की हद तक बंद करना पड़ा तो इस बारे में मैं बहुत जल्द आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ताकि कल की हद तक हम बाज़ार अगर बंद ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक सर। जी नाज़रीन, ये थे जनाब असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा जनाब सैयद नसीम अब्बास शाह साहब। वो तफसील बता रहे थे कि कितने यहाँ पर मुस्बत आए और कितने लोगों के यहाँ पे नेगेटिव हैं। और लाजिम मैं ये आपको बताता चलूँ कि ये बात लोगों का ये एतराज़ होता है कि इसकी कवरेज के हवाले से, तो देखें ये जो कवरेज है ये इसलिए ज़रूरी होती है कि ताकि दूसरे लोग जो है वो चीज़ से बच सकें। और ये पैगाम है, ये कोई ऐसी बीमारी है नहीं है कि फ़ौरन ये लगेगी इंसान को तो वो फ़ौरन जो है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसका एक ही इलाज है कि आप जो है सोशल डिस्टेंस रखें, एक समाजी वक्फा रखें और अपने घरों की हद तक ये आप मुक़य्यद हो जाएं, बाज़ारों का रुख ज़्यादा ना करें। इसका वायदा यही हाल है। तो नाज़रीन मैं ये आपको बताता चलूँ, जो भी लोग बैरून ममालिक से देख रहे हैं, मुख्तलिफ सवाल पे कर रहे हैं, देखें ये आपके जो सवाल हैं इंशाअल्लाह जिस दिन हमारी जो है ये असिस्टेंट कमिश्नर साहब से जो है ये तफसीली जो गुफ्तगू होगी तो उनसे ये ज़रूर जो है हमें ये सवाल भी आपसे पूछेंगे। तो चूँकि आप जो है ये मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक ये मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।